Hello students, welcome to another lecture of complex numbers. In this lecture we are going to discuss what is the argument of a complex number and what is the amplitude of a complex number. Okay, so the very first thing that I have written it down is that a complex number is not completely defined by its modulus. Okay, we have already studied what the modulus is. The modulus of a complex number is basically the distance of that complex number फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, तो अभी आपको ऐसे बोला जाए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस है 5. ओके, सम कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग 5 मॉडुलस. ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट के इक्वल है. ओके, इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ जिस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन के ऊपर और सर्कल का रेडियस है 5 यूनिट. ओके, मान लेते हैं ये 5 यूनिट रेडियस है, तो इस सर्कल के ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट ये उस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा. ये मैं कुछ ही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे शो कर पाऊँगा. ऑब्वियसली तुम्हें ये पता है कि एक सर्कल के ऊपर इन्फानाइट पॉइंट्स होते हैं, सो देयर आर इन्फानाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर which are having a magnitude of or modulus of 5 unit. इसका मतलब that this information which the modulus of a complex number is not very comprehensive information by which we can define that complex number in full method. Okay, so in order to define a complex number, completely define a complex number, basically we would require some other information, and that other information is what? That other information is argument of a complex number. Okay, so what does it mean? Argument of a complex number says that if a complex number, say suppose this is a complex number on the circle of radius 5 unit having center at origin, so if we join this complex number with the origin, this distance which is the radius of this circle again which gives us 5. Okay, this line makes some angle with our real axis. Okay, this line is making some angle with positive real axis. This angle is called as complex this angle is called as the argument of this complex number. So if I say that mark a complex number having magnitude 5 and its argument having theta, so this type of complex number is unique. So this is the only complex number having inclined at an angle of theta with positive real axis and at a distance of unit at a distance of 5 units from the origin. Okay, so argument of a complex number, basically it provides the inclination of that complex number with the positive real axis. So the definition of argument of complex number is if Z is any complex number, then its argument is the angle. Argument is basically the angle. Okay, argument is the angle made by the line, which is formed by joining the complex number to the origin. अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान लिया सपोज z इक्वल टू a प्लस आइटा b, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट a कामा b द्वारा रिप्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर. तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन ये है कि इस पॉइंट को ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करना है, ओरिजिन दैट इज 0,0. अब इस वाली लाइन ने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में, नेगेटिव रियल एक्सिस का ये वाला एंगल नहीं लेना है. ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारा आर्गुमेंट कहलाता है. ठीक, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट. ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे और ज़रूरी है समझने वाली, दैट argument of 0
आर्गूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। खुद भी सोच सकते हो डेफिनेशन अप्लाई करके। डेफिनेशन के हिसाब से जीरो का आर्गूमेंट क्या होना चाहिए कि जीरो को जीरो के साथ ज्वाइन करो, फिर जो लाइन सेगमेंट बने उसका एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में। अभी कोई लाइन सेगमेंट बन ही नहीं रहा है तो वी कैन नॉट फाइंड व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय दैट लाइन सेगमेंट विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस। ओके, सो दैट इज़ वाई आर्गूमेंट ऑफ जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। तो जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मॉडुलस के द्वारा ही डिफाइंड हो जाता है, उसके लिए आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जीरो के अलावा ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर वुड रिक्वायर the modulus as well as its argument for them to be completely defined. Okay, so we will write 0 is only complex number which is completely defined by its मॉडुलस। ओके, तो ये मॉडुलस की आर्गूमेंट की डेफिनेशन आपने देख ली और फिर ये समझ लिया कि जीरो का आर्गूमेंट क्यों डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब अगर हम लोग सिर्फ इतने डेफिनेशन के बेसिस पे अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, जैसे ये कुछ क्वेश्चन हैं, सिंपली हमें आर्गूमेंट बताना है इसका, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल अभी तुम आर्गूमेंट बताओ। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना। जैसे जीरो है तो हमने अभी डिस्कस किया, जीरो का आर्गूमेंट जो है वो नॉट डिफाइंड है। फिर 5 है, अब 5 होगा पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, 5 का मतलब 5,0, तो उसको हम लोग ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करेंगे। फिर ये कितना एंगल बना रहा है रियल एक्सिस के साथ में, जीरो एंगल, तो इसका आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो गया। 6 वो भी यहाँ पे कहीं होगा, 6,0, इसका भी आर्गूमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। -√3 अगेन एक रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ कहीं होगा -√3। जब इसको हम ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करेंगे तो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल बनेगा, पाई, 180 डिग्री। जनरली हम लोग ऐसा रेडियन में लेके चलते हैं तो पाई लिखेंगे। ठीक, फिर देखें 2 आयोटा क्या है, 2 आयोटा कहाँ पर होगा, 2 आयोटा का मतलब 0,2 पॉइंट, 0,2 इधर होगा। फिर डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि पॉइंट को ज्वाइन करो ओरिजिन के साथ में, फिर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ देखो कितना एंगल बना, तो एंगल है π/2। ऐसे ही -i/3 ये नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा कहीं, 0, -1/3 पॉइंट। पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे, ये एंगल, तो ये है -π/2। हमेशा जो एंगल क्लॉकवाइज मेजर होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव से ये एंटी क्लॉकवाइज चल के है तो ये इसको लिखेंगे -π/2। ठीक है, ये बात याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट को हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट को हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके। तो और आगे डिस्कस किया जाए क्या और चीज़ है। अब ये तो बात हो गई डेफिनेशन की, और फिर हमने ये देखा कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उन सब का आर्गूमेंट जीरो होगा, नेगेटिव एक्सिस के ऊपर जितने भी होंगे उन सब का पाई होगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जितने होंगे उन सब का π/2 और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर -π/2। तो इन सब पॉइंट्स को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इफ़ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है देन आर्गूमेंट ऑफ z पॉजिटिव हुआ तो जीरो, प्योरली रियल का मतलब रियल नंबर, अब रियल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, तो पॉजिटिव हुआ तो जीरो, नेगेटिव हुआ तो पाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ z इज प्योरली इमेजिनरी, तब क्या हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर यहाँ पर, तो अभी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर या तो पॉजिटिव साइड में होगा या तो नेगेटिव साइड में। पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव से एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस से, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे,
एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री को प्लस पाई बाई 2 लिखेंगे, और अगर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे इधर हुआ तो ये इसको ज्वाइन करें, और फिर ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल मेजर करेंगे तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री उसको हम लोग माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 अकॉर्डिंगली पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके हिसाब से। ठीक, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो देखो। अब मान लो मैंने यहाँ से ओरिजिन से 45 डिग्री की एक लाइन बना दी। ठीक है, ओरिजिन से पास होते हुए 45 डिग्री की एक लाइन, या ऐसे समझ लो ये रे है एक। ठीक, अब इस रे के ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जैसे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सेलेक्ट किया Z1, यहाँ सेलेक्ट किया Z2, यहाँ मान लिया Z3, इसको मान लिया मैंने Z4। अब मैं तुमसे पूछूं कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 बताओ, तो Z1 के आर्गूमेंट का मतलब कि Z1 को ओरिजिन से ज्वाइन करो और देखो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में क्या एंगल है। तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है 45। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल अपना रियल एक्सिस है और वर्टिकल अपना इमेजिनरी एक्सिस है। तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 ये क्लियरली दिख रहा है, कितना है 45। 45 को रेडियन में लिखेंगे पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे ही अगर पूछा जाए कि आर्गूमेंट ऑफ Z2 बताओ इसी डायग्राम से, तो वो भी आएगा पाई बाई 4। अगर बोला जाए आर्गूमेंट ऑफ Z3 बता दो, तो उसका आंसर भी है पाई बाई 4। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इस लाइन के ऊपर मौजूद जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, देयर में भी इन्फानाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उन सब का आर्गूमेंट क्या होगा, पाई बाई 4। तो इसका मतलब ये है कि देयर कैन बी इन्फानाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग सेम आर्गूमेंट। एक ही आर्गूमेंट के हज़ारों लाखों करोड़ों बेसिकली इन्फानाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरा, अब ये समझो ये जो डेफिनीशन है, आर्गूमेंट का जो डेफिनीशन है, उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि एंगल मेजर करना है आपको, वो भी एंगल कहाँ से, पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करना है। लेकिन कहीं पर ये नहीं बोला गया उस डेफिनीशन में कि एंगल का जो रेंज है, मतलब वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। कहीं पर ऐसा नहीं बोला गया कि 360 से कम ही एंगल होना चाहिए। डेफिनेशन में कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पूछा Z1 का आर्गूमेंट बताओ, तो किसी ने बोल दिया पाई बाई 4। ठीक है, अब किसी का मन हुआ वो पूरा उसने एक रेवोल्यूशन लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर वो 45 डिग्री, तो मैं पता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है 360 डिग्री का, तो इसका मतलब 360 को रेडियन के अंदर लिखेंगे तो 2 पाई। तो अब इसी एंगल को, ये 45 का ही जो एंगल है, इसको हम लोग 360 प्लस 45 भी बोल सकते हैं। किसी ने अगर एक रोटेशन फिर दूसरा रोटेशन, 2 रोटेशन लेने के बाद में एंगल मेजर किया, तो वो बोलेगा 360 इंटू 2 मतलब 720 प्लस 45। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्फिनाइट आर्गूमेंट हो सकता है। जैसे अगर आर्गूमेंट ऑफ Z1 किसी ने बताया 45, ठीक है, किसी दूसरे ने बताया 360 डिग्री प्लस 45 यानी कि 405 एंगल है ना, वो भी सही है। किसी ने अगर बोला कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो है वो 720 प्लस 45 है, वो भी सही है। ठीक है, किसी का मन हुआ उसने क्लॉकवाइज मेजर किया, क्लॉकवाइज ये, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हमेशा एंगल को नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आर्गूमेंट हम लोग लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 बराबर 360 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 315 नेगेटिव में। ये भी आंसर सही है। सो इसका मतलब दो चीज़ें हम लोग समझे, एक कि एक पर्टिकुलर आर्गूमेंट के इन्फिनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, दूसरा एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फिनाइट आर्गूमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देयर में भी, या मे भी नहीं, बेसिकली होते ही हैं, देयर आर infinitely many complex numbers having a particular argument
आर्गूमेंट, एक पर्टिकुलर आर्गूमेंट के इन्फानाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और दूसरा चीज, देयर आर infinitely many arguments of any complex number obviously except जीरो, क्योंकि वो हमें पहले ही पता है कि जीरो का जो है आर्गूमेंट डिफाइन नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं, हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के इन्फानाइटली मेनी आर्गूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट पूछा गया तो ऐसा हो सकता है कि सबका जवाब अलग अलग है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर हमने एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनाया है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट का ही दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है वो देखो। बेशक एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हजारों लाखों करोड़ों आर्गूमेंट्स होंगे, लेकिन उनमें से ये जितने भी आर्गूमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, एंगल होंगे। ठीक है ना, आर्गूमेंट इज बेसिकली एंगल। तो उन हजारों लाखों करोड़ों एंगल में से एक एंगल ऐसा जरूर होगा जो माइनस 180 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा। एक एंगल ऐसा जरूर होगा जो माइनस 180 डिग्री, अगर रेडियन में लिखें तो माइनस पाई से लेके पाई, तो जो एंगल माइनस पाई से पाई के बीच वाला होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट बोल देते हैं। अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूनिक होगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो होगा ये हजारों लाखों नहीं होंगे, ये यूनिक होगा। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। सो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, इट इज़ जस्ट द एंगल, या ऐसे बोल सकते हैं दैट आर्गूमेंट which lies in the range माइनस पाई से पाई। एक चीज़ और देख लो ध्यान से, यहाँ पर माइनस पाई को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। माइनस पाई के ऊपर ओपन ब्रैकेट है और पाई के ऊपर क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे एग्जांपल हमने ये -√3 का लिया था, तो -√3 को अगर हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो पाई बोलेंगे, क्लॉकवाइज मेजर करें तो माइनस पाई बोलेंगे। तो इसलिए ये माइनस पाई के ऊपर कहीं आया तो उसको हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज मेजर नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब इन दोनों में से एक ही मुझे कोई लेना है, या तो मुझे पाई लेना है या तो मुझे माइनस पाई लेना है, तो हम लोग ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये ओपन ब्रैकेट है और ये वाला क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, जिसका दूसरा नाम होता है क्या, एम्पलीट्यूड। ठीक, ऑलरेडी हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोग एम्पलीट्यूड ही फाइंड किए थे, है ना। इसके लिए कहीं कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन का यूज करके हमने देख लिया। जीरो का नॉट डिफाइंड, 5 प्योरली रियल है, वो भी पॉजिटिव साइड में, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो होगा। 6 का भी जीरो होगा, कोई भी पॉजिटिव रियल का एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो रहेगा। नेगेटिव रियल का पाई रहेगा। ठीक है, और प्योरली इमेजिनरी अगर है तो पॉजिटिव साइड में है अगर तो π/2, नेगेटिव साइड में है तो -π/2। ओके, तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की और उससे जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट उन कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करना है जो हमारे रियल या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर नहीं है। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए उनमें हमने यही देखा कि रियल और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो हम बड़े आराम से देख सकते हैं। लेकिन ऐसे भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो मान लो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज 4,4, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 + 4 आएटा। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा ये देखना है।
तो बेसिकली अपने को एंगल कैलकुलेट करना है। डेफिनेशन तो यही बोलता है कि इसको कहाँ से, ओरिजिन से ज्वाइन करो और फिर ये वाला एंगल देखो, ठीक है। अब अगर तुम देखो यहाँ पे ये 4,4 है, यहाँ से अगर तुमने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया रियल एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला जो लेंथ है ये 4 हो जाएगा और ये वाला लेंथ भी 4 हो जाएगा, और ये थीटा एंगल तुम्हें बताना है। तो अगर तुम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करोगे तो लिखोगे 4/4, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या होगा, π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया। हम लोग एक जनरल केस लेके चलते हैं और फिर ये देखते हैं कि कैसे इन जनरल हम लोग को ये आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलो मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास में a, b, यानी कि a प्लस आयोटा b फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये वाला लेंथ a है और ये वाला लेंथ जो है वो b है, ठीक है। तो फिर वही हम लोग इस वाले एंगल को, चलो मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैं लिखूँगा tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा क्या लिखा जाएगा, b/a, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स b/a, ओके। अब चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, इसीलिए जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड जिसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल 0 से 90 के बीच में होगा, तो वो अपने आप ही -180 से 180 के रेंज में आ गया। तो इसलिए ये जो अल्फ़ा है यही हमारा आर्गुमेंट भी हो गया। हम क्वेश्चन में और देखेंगे, बेहतर क्लियर होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में है, मान लिया a प्लस आयोटा b, अब इसको भी हमने ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉप किया, ठीक। अब यहाँ पर a और b दोनों पॉजिटिव नहीं है, a नेगेटिव है लेकिन b पॉजिटिव है, तो ये b हो गया। और ये वाला जो लेंथ है, ये इसको मैं a नहीं लिख सकता, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉड a, ठीक है। अब इस वाले एंगल को अगर मैं अल्फ़ा बोलूँ तो अगेन tan अल्फ़ा बराबर लिखेंगे हम लोग b/mod a इस केस में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लो, हर जगह मुझे जब भी मैं tan यूज करूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसमें मुझे साइड का लेंथ लिखना है, तो बेहतर है हर जगह पे मॉड लेके चलो, ठीक है। पॉजिटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही मॉड जो है वो हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या मिला, tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो अल्फ़ा है वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ा नेगेटिव रियल एक्सिस से कैलकुलेट हुआ है। तो अपने को तो बेसिकली ये एंगल कैलकुलेट करना है, दिस एंगल इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ये एंगल कितना होगा, देखो क्लियरली वहाँ पे पता चल रहा है, ये टोटल एंगल 180 है, पाई उसमें से अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड जो होगा, जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा विल बी पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, हमने उसको ओरिजिन के साथ में ज्वाइन करना है, ठीक। फिर मैंने रियल एक्सिस के ऊपर ऐसा एक परपेंडिकुलर डाला, ये वाला जो लेंथ है ये मॉड b कहलाएगा, ये वाला लेंथ मॉड a कहलाएगा। इस एंगल को अगर हम अल्फ़ा बोल रहे हैं तो हम लिखेंगे फिर से वही tan अल्फ़ा बराबर मॉड b अपॉन मॉड a, यानी कि अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। अब देखो, क्या ये जो अल्फ़ा है यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, नहीं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट अपने को हमेशा एक तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कैलकुलेट करना होता है, और दूसरा 180 से -180 और 180 के बीच में रहना चाहिए एंगल। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला इधर से अगर बढ़ेंगे, पॉजिटिव से अगर आएंगे तो वो 180 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इधर से देखेंगे, ये वाला हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इस केस में जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा थीटा, वो होगा सिंपली
देखो क्लॉक वाइज यहाँ तक जाएंगे तो इसको लिखेंगे माइनस पाई, क्योंकि क्लॉक वाइज माइनस में लिखते हैं, और फिर एंटी क्लॉक वाइज यहाँ तक आना है अपने को, तो वो कितना है अल्फ़ा, तो बेसिकली हो गया अल्फ़ा माइनस पाई। ठीक है, अल्फ़ा माइनस पाई। और एक आखिरी रह गया डिस्कशन फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a कामा बी या a प्लस आइटा बी, हम ज्वाइन करेंगे उसको ओरिजिन के साथ में। ठीक है, रियल एक्सिस के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर डाले तो ये वाला लेंथ मॉड बी, ये वाला लेंथ मॉड a, फिर से हम लिखेंगे tan अल्फ़ा बराबर मॉड बी अपॉन मॉड a, या फिर अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स मॉड बी अपॉन a। ठीक है, अब लेकिन ये जो अल्फ़ा है ये अगेन इस केस में एम्पलीट्यूड नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा ये वाला एंगल है। ठीक है ना, तो ये एंगल हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है, इसीलिए हमको इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इसीलिए जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो माइनस अल्फ़ा हो गया। ठीक है, तो इन चारों में ही सिमिलरिटी है, वो अगर तुम ध्यान से देखो तो हर केस में हम लोग पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हर केस में हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फ़ा। ठीक है, चाहे जिस मर्जी क्वाड्रेंट में हो कॉम्प्लेक्स नंबर, हर केस में हमको पहले अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेना है, और अल्फ़ा कैलकुलेट करना है चारों क्वाड्रेंट में। देख लो सेम ही फार्मूला है, tan इनवर्स मॉड बी अपॉन ए, बी का मतलब इमेजिनरी पार्ट, ए का मतलब रियल पार्ट। ठीक है, तो बस एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है पॉजिटिव साइन के साथ, है ना, साइन वाइन नहीं देना, मतलब नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव ही लेना है, तो वहाँ से अल्फ़ा मिल जाएगा। अब अल्फ़ा कैलकुलेट करने के बाद फिर हमको ध्यान देना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर था। अगर पहले में था तो जो अल्फ़ा है वही हमारा आंसर है, जो अल्फ़ा है वही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फ़ा है वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है, पाई माइनस अल्फ़ा है। थर्ड में अल्फ़ा माइनस पाई है, और फोर्थ में माइनस अल्फ़ा है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया हुआ है, देख लो आप। ये स्टेप्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए tan इनवर्स। इस केस में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई ले लिया, तो करना अपने को बेसिकली वही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। और मॉड क्यों लगा रहा हूँ, आई होप मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया मॉड क्यों लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करके अल्फ़ा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो हमारा अल्फ़ा है वही प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, सेकंड में है तो पाई माइनस अल्फ़ा, थर्ड में है तो अल्फ़ा माइनस पाई, फोर्थ में है तो माइनस अल्फ़ा। ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और आपको ये डाउट हो सकता है कि ये tan इनवर्स क्या चीज़ है। ठीक है, tan इनवर्स का मतलब कुछ नहीं है, जैसे कई बार हम मान लो कि tan अल्फ़ा कैलकुलेट किए और आंसर आया कुछ 11 बटा मतलब 11 अपॉन कुछ मान लेते हैं 9। ठीक है, 11/9। अब अपने को ऐसा एंगल पता नहीं है जिसके tan का वैल्यू 11/9 है, तो उस केस में हम लोग जब अल्फ़ा लिखेंगे तो उसको सिंपली tan इनवर्स 11/9 करके लिख देंगे। लेकिन वहीं पे मान लो कि मैंने tan अल्फ़ा कैलकुलेट किया और वो आ गया √3, तो उस केस में तो मुझे पता है कि tan किस एंगल का √3 होता है, किस एंगल का होता है 60 डिग्री का। डिग्री में लिखेंगे तो 60 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखेंगे तो π/3। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, इन्वर्स का मतलब यही है। बस वही कोई अननोन टाइप का वैल्यू आ गया जिसका एंगल तुम्हें नहीं पता है, तो उस केस में बस वो tan इन्वर्स करके लिख देना है। ठीक है, वैसे तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा टॉपिक है, बट वो 12th क्लास में है, अभी तो बस इतना ही जानूँ। अब आइए कुछ एग्जाम्पल कर लिया जाए। अभी अभी जो हमने सीखा उसी को अप्लाई करना है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट का दूसरा नाम एम्पलीट्यूड। ठीक, सबसे पहले काम अल्फ़ा कैलकुलेट करो, तो tan इनवर्स √3/1। ठीक है, मॉड लेना है, तो tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मतलब बेसिकली आया tan अल्फ़ा बराबर √3, तो फिर मैंने अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स √3 लिखा है।
इसका मतलब कौन सा एंगल है जिसके tan का वैल्यू √3 है, कौन सा एंगल, π/3 60 डिग्री, तो ये अल्फ़ा हो गया। फिर हमने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब यही जो है हमारा एम्पलीट्यूड भी हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा अल्फ़ा, जो कि होगा tan इनवर्स अगेन √3/1, ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एब्सोलूट वैल्यू लेके चलना है, -1 है तो माइनस नहीं रखा मैंने, ठीक है। ये फिर से कितना आया, ये आया अपने पास में π/3, लेकिन चूंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में था, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड होगा पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा कितना था π/3, तो आंसर हो गया 2π/3। ठीक, यहाँ देखें फिर से अल्फ़ा √3/2 अपॉन 1/2, एब्सोलूट वैल्यू लेके चलना है, ठीक है, मॉड, तो फिर से ये 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3 अगेन π/3, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा माइनस पाई, अल्फ़ा माइनस पाई यानी कि π/3 माइनस पाई, दैट इज -2π/3 हो गया आंसर। ठीक, एक और फोर्थ क्वाड्रेंट का एग्जांपल लिया जाए, अल्फ़ा इक्वल टू, पहले सबसे पहले अल्फ़ा कैलकुलेट किया, tan इनवर्स 2√3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, फिर से वही tan इनवर्स √3 आया, अगेन अल्फ़ा π/3, बट जो एम्पलीट्यूड होगा, चूँकि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस अल्फ़ा यानी कि -π/3 ये एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, ये तो कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जैसे ये फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट का प्रिंसिपल आर्गूमेंट बताना है। अब एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास कि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके, खूब ढेर सारी मेहनत करके, और a + आयटा b के फॉर्म में लिखें, और फिर वहाँ से हम लोग tan इनवर्स मॉड b अपॉन a करके अल्फ़ा लिखें, फिर देखें कि वो कौन सा a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में है, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखें। ठीक है, वैसे तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना, मैं बोल रहा हूँ एक बार खुद करके देखना, और ये खुद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये मेथड जो है वो कितना लेंदी मेथड है। तो हमेशा इसका एक दूसरा मेथड ज़रूर होगा, ठीक है। अब वो मेथड क्या है, उसके लिए फिर हमें कुछ आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा, और वो प्रॉपर्टीज क्या है, पहले आइए प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आर्गूमेंट की, ठीक। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैं अभी प्रूफ नहीं कर पाऊँगा, इन सब्सिक्वेंट लेक्चर उसको हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी को मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला प्रॉपर्टी है कि जीरो का आर्गूमेंट डिफाइन नहीं है, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके, दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आर्गूमेंट है, दूसरा प्रॉपर्टी है आर्गूमेंट ऑफ जेड बार माने जेड का कॉन्जुगेट इज बेसिकली माइनस टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये देख लो, तुरंत समझ आ जाएगा। अगर तुम्हें ये रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता है, अगर जेड यहाँ पर है तो जेड कॉन्जुगेट इसी जेड का इमेज होता है किसमें, रियल एक्सिस में। तो अगर इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करें, ये अगर थीटा एंगल है तो जेड बार का ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। लेकिन अगर ये ऊपर वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे वाला हमें क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज लेंगे तो उसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, देखो, जो भी आर्गूमेंट जेड का है उसी का नेगेटिव आर्गूमेंट किसका हो गया, कॉन्जुगेट का। ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन से ही समझ आ गया। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड भी हम लोग समझ सकते हैं, इसी डायग्राम से ही समझ सकते हैं। अगर जेड यहाँ पर है, जेड चलो मैं मान लेता हूँ a + आयटा b, यानी कि पॉइंट की बात करें तो a, b पॉइंट, ठीक है। अब माइनस जेड क्या होगा, माइनस जेड, अगर जेड है मेरे पास a + आयटा b, तो माइनस जेड होगा -a - आयटा b। पॉइंट की बात करें तो -a, -b, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि a, b का ओरिजिन में रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन देखा जाए तो वही होता है -a, -b, ठीक है। तो अगर a, b मैंने यहाँ कंसिडर किया था इसको, तो मेरा ये ओरिजिन से बस उसी सेम लाइन में, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस अगर चलेंगे
तो हम लोग पहुंच जाएंगे माइनस जेड के ऊपर। ठीक, अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन इसका जो आर्गुमेंट मुझे लिखना है, ठीक है, वो आर्गुमेंट तो क्या लिखूँगा मैं, ये चीज़, क्योंकि अपने को पॉजिटिव रियल एक्सिस से कैलकुलेट करना है। यहाँ बात मैं आर्गुमेंट की कर रहा हूँ, ध्यान रहे एम्पलीट्यूड नहीं है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, 180 से बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो फिर वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंगल है वो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस 180 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखो अब इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे, ये जो एंगल अभी, ये एंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, यहाँ तक ये पाई हो गया, और पाई में आगे और थीटा चले गए, ठीक है ना। तो पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इधर से लिखेंगे, इधर से, तो इधर से यहाँ तक ये माइनस पाई है, माइनस पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। तो माइनस पाई प्लस थीटा करके भी इसी चीज़ को माइनस पाई प्लस थीटा, यानी कि थीटा कितना था, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको तो पता ही है कई तरीक़ों से आर्गुमेंट लिखा जा सकता है ना। आर्गुमेंट यूनिक तो होता नहीं है, एम्पलीट्यूड यूनिक होता है। ठीक, अब देखिए फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी का अभी कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा, वो सब्सिक्वेंट लेक्चर में आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो आर्गुमेंट है वो बस ऐसे सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट कैलकुलेट करने का मतलब कि दोनों का अलग आर्गुमेंट करके उनको जोड़ दो, ऐड कर दो सिंपली। Z1 इंटू Z2 आर्गुमेंट इज सिंपली आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। ठीक है ना, मतलब ये जो लॉग वाली प्रॉपर्टी होती है, log m इंटू एन कैन बी रिटन एज log m प्लस log n, उससे रिलेट करके देख लो ये। ठीक है ना, तो याद रह जाएगा, क्योंकि ये लॉग वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी याद ही है तुमको। लॉग में ये डिवीजन वाली भी प्रॉपर्टी होती है, log m बाई एन इक्वल टू log m माइनस log n, तो उससे रिलेट कर सकते हो ये सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी को। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन अगर है तो न्यूमरेटर के आर्गुमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग इसका डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग याद कर सकते हैं बाई ऑब्जर्विंग दिट्स एनालॉगस विथ द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ओके, और इसका एक्सप्लेनेशन जैसा मैंने पहले ही बताया, ये तुमको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, तो और आगे देख लिया जाए, एक बार पूरा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद। अच्छा, ये तो दो के लिए था, ठीक है ना। दो से ज़्यादा अगर है तो जितने हैं उन सबको जोड़ दो, तीन है तो तीनों को जोड़ दो, एन है तो एन को जोड़ दो, ये उसी का जनरलाइजेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी में फोर्थ की जो जनरलाइज प्रॉपर्टी है उसी में Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ये सब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। सबको अगर Z रख दिया जाए तो Z का पावर n हो जाएगा यहाँ पे, Z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड n टाइम्स। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आर्गुमेंट Z1, आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट n बार, तो वही n टाइम्स आर्गुमेंट Z। ठीक है, तो ये सिक्स प्रॉपर्टी भी जो है वो फोर्थ से ही डिराइव हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद सेवन्थ और एट्थ प्रॉपर्टी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में भी अगर तुम ध्यान दो तो अभी अभी जो हमने आर्गुमेंट की फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी, ये कुछ वैसा ही है। डिफरेंस बस यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें, ये डिफरेंस है बस। ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रहे, एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट नहीं है ये। ठीक है, तो क्या अंतर है, बस वो लास्ट में 2n पाई लिखा हुआ है दोनों में। ठीक है ना, मतलब करना तो इसमें भी वही है कि मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड कर देना है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन कई बार क्या होगा, देखो ये 2n पाई क्यों करना पड़ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। मान लो एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास 5, ठीक है, सिंपल 5 है।
या ऐसा कुछ मान लेता हूँ मैं, 5 छोड़ो, ठीक है चलो 5 ही रख लेते हैं, और Z2 कुछ मान लेता हूँ मैं, -2 प्लस आएगा, ठीक है। या आसान सा डाटा ले लेता हूँ जिसका एंगल कैलकुलेट हम कर पाएँ, तो -1 प्लस आएटा √3, ये है, ठीक। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, एम्पलीट्यूड माने प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो 5 प्योरली रियल, वो भी पॉजिटिव, ठीक है ना, 5 आएटा है बेसिकली, ठीक। तो प्योरली इमेजिनरी वो पॉजिटिव वाला, तो कितना होगा π/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक। ओके, फिर Z2 का अगर मैं एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, एम्पलीट्यूड माने प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो ये पहले हमको अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा आ जाएगा tan इनवर्स √3 यानी कि π/3, और फिर मैं देखूंगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसके लिए पाई माइनस अल्फ़ा हो गया, तो 180 माइनस 60 हो गया 120, ठीक। अब यहीं पर अगर मैं लिखूँ एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, अगर मैं ये +2n पाई वाला हिस्सा नहीं लिखूँ तो ये चीज़ जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखो, क्योंकि अभी अभी हमने कैलकुलेट करा, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना आया मेरे पास 90 डिग्री, और ये कितना आया 120 डिग्री, 90 और 120 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 210। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, वो 210 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -180 से छोटा नहीं होना चाहिए, -π से पाई के रेंज वाला जो एंगल है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। तो इसके लिए यहाँ 2n पाई ये लिखा जाता है, ताकि ये अगर कभी 180 से ज़्यादा हो गया तो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करके उसको 180 से कम किया जाए, और -180 से छोटा हो गया तो कुछ जोड़ के उसमें -180 से उसको बड़ा किया जाए, ठीक। तो अब जैसे ये 210 है तो इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2 पाई का मल्टीपल, 2n पाई का मतलब क्या हुआ, ये n जो है ये कोई भी इंटीजर है, n जो है ये इंटीजर है, ठीक है। तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड तो करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा है, ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। तो -3 360 जब कर देंगे तो 210 माइनस 360 कितना हो जाएगा -150, और -150 देखो इस वाले रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एम्पलीट्यूड वाली प्रॉपर्टी में वो लास्ट में 2n पाई अपने को लिखना पड़ता है, ठीक। ऐसा ही एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं किसके लिए, डिवीजन के लिए भी, ठीक है। तो ये सब हो गई कुछ प्रॉपर्टी। अब इन प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे हम लोग इस तरीके के कॉम्प्लेक्स, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये z है, फिर मुझे लिखना है एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो अभी अभी जो हमने समझा कि जितना भी मल्टीप्लाई में है सबको ऐड करते जाओ, और जितना भी डिवाइड में है सबको सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो ये 1 प्लस आएटा इंटू 1 प्लस आएटा 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आएटा, फिर बाकी न्यूमरेटर में और फिर से ट्वाइस एम्पलीट्यूड ऑफ -1 माइनस आएटा √3, फिर जो डिवाइड में है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ -5 आएटा एंड माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ -√3 प्लस आएटा। लेकिन इतना लिख के छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये रेंज के बाहर चला जाए, तो ये 2n पाई हमेशा लास्ट में लिखेंगे, वो लास्ट में काम आएगा, ठीक है। अब देखो ट्वाइस ऑफ, अब आप ये कैलकुलेट करना 1 प्लस आएटा का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ π/4 प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक। आप इसका कैलकुलेट करके देखेंगे खुद ही, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका अल्फ़ा का वैल्यू आएगा π/3, बट π/3 माइनस पाई करना पड़ेगा, थर्ड में है ना, तो ये -2 π/3 आंसर मिलेगा। फिर माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड देखना, -5 आयोटा का वो होता है -π/2, एक माइनस पहले से लिखा है तो +π/2, फिर माइनस टाइम्स एम्पलीट्यूड देखना है हमें -√3 प्लस आयोटा का, -√3 प्लस आयोटा का अल्फ़ा होगा π/6 30 डिग्री, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, लेकिन ये सेकंड में है तो 180 माइनस 30 यानी कि 150,
तो 150 को पाई में कैसे लिखते हैं हम लोग, 5 पाई बाई 6, और लास्ट में ये 2n पाई। ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा। अब ये सबको ऐड कर लेना है, तो एलसीएम देख लो सबका। यहाँ तो ये 2 है तो 6 एलसीएम हो गया। पहला हो गया 3 पाई, -4 इंटू 2 मतलब -8 पाई, फिर से +3 पाई एंड -5 प्लस 2n पाई। ठीक, ऊपर वाले को न्यूमरेटर को अगर सम करें तो 3 + 3 6, 6 - 13, 6 - 8 - 5, 6 - 13 इज -7 पाई अपॉन 6। ठीक, अब खुद देखो -7 पाई अपॉन 6 जो है, क्योंकि पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, इंटू -7 यानी कि -210। हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट -180 से 180 के रेंज में ही रहना चाहिए, ये इधर आ गया -210। तो इसीलिए हम लोग ये लास्ट में 2n पाई लेके चल रहे हैं, ताकि अगर कभी ये रेंज के बाहर जाए तो उसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करके रेंज के अंदर लेके आ जाए। ठीक है, तो अब देखो ये 210 है ना माइनस में, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा अपने को। क्या ऐड करना पड़ेगा, और ऐड हमेशा ये 2 पाई का मल्टीपल ही ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो +2 पाई यहाँ पे कर देंगे प्रिंसिपल के लिए। अगर सिर्फ आर्गूमेंट पूछा जाता क्वेश्चन में तो सिर्फ आर्गूमेंट हम लोग ये भी आंसर बोल सकते थे, ओनली आर्गूमेंट। लेकिन चूंकि यहाँ प्रिंसिपल आर्गूमेंट पूछा है, इसीलिए हम लोग को ऐसा एंगल लिखना पड़ रहा है जो -180 से 180 के बीच में हो। सो फाइनल आंसर इज -7 पाई प्लस 12 पाई अपॉन 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 डिग्री में लिखेंगे तो 150। जनरली हम लोग डिग्री में लिखते नहीं है, SI यूनिट एंगल मेजर करने का जो रेडियन ही होता है, तो रेडियन में ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप अच्छे समझ आया होगा। ये 6 क्वेश्चन आप खुद इसी तरीके से ट्राई करें अभी तुरंत। ठीक है, और देखें इसका क्या आंसर आता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट argument of a complex number and how to calculate the argument of complex number, whether it is in first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant, or on the axis. Okay, thank you.